आज जिन पर चर्चा करने वाले हैं, आत्ममंथन करने वाले हैं, अपने भीतर झांकने वाले हैं। लोगों की पसंद को भी एक आकार देने का काम भी मीडिया का होता है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। The TV9 Media Soul Searching Roundtable is a small effort to trigger that introspection. रेफरी पहलवान बन गया है। वो वजह क्या है कि हमारी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। Namaste, hello, and welcome to TV9's Media Soul Searching Roundtable discussion. I'm your digital host, Priyanka Deo. If you have any pictures, screenshots, feedback, and questions, be sure to use the hashtag Media Soul Searching in TV9's social media handles. With that being said, in the montage you just saw, you must have noticed the energetic debate that has ensued among the participants of the roundtable, all of whom are big names in their respective fields. In this part, you will see and hear from our eminent guests, including senior journalist Ram Kripal Singh, Santosh Desai from Future Brands, Rajesh Kalra of AsiaNet, and Gaurav Vallabh from the Congress Party. मैं अभी तक जो सुन रहा हूँ यही बात हो रही है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी की इशू कितनी बढ़ गई है और मीडिया के ऊपर अभी लोगों को विश्वास है कि नहीं है। तो मैं तो खाली ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया इस टाइम पे जिस दौर से गुजर रहा है, मेरे ख्याल में इतनी क्रेडिबिलिटी इशू उसे कभी नहीं थी। एंड कई चीज़ें तो इसलिए क्योंकि मीडिया खुद भूल गया है कि वो क्यों मीडिया बना था। लोग हम पे विश्वास इसलिए करते हैं कि हम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहके हुए नहीं होते हैं, सही जो होता है वो कहते हैं। लेकिन फेस्ड विद कंपटीशन फ्रॉम न्यू मीडिया लाइक सोशल मीडिया, what has happened is our media has tried to embrace what social media does in terms of speed, which is a good thing. But in doing so, it has forgotten some of the things which it should never have done, things like fake news, unverified news, all those things. And उसकी वजह से क्या हो गया है, पहले लोग आपको देखते थे, कहते थे आप तो बिल्कुल सही बोलते हैं because you are the respected and the one to be trusted media. But in the quest to compete with social media and the newer media, you have become them, like them. And because of that, you are no different. लोग कहते हैं अगर सोशल मीडिया पे हमने ये देखा है, आप भी तो यही चीज दे देते हैं विदाउट वेरीफाइंग, which is a big thing which is impacting the media right now. Other thing is people have started talking about whether the media now is biased, which was not the case earlier. मुझे लगता है ऐसा नहीं था, हमेशा ही मीडिया biased होता था, लेकिन एक तरफ की बात हमेशा आगे होती थी। पिछले कुछ सालों में दोनों तरफ के पक्ष आने लग गए हैं और वो जो पहले नहीं होता था, इसकी वजह से आप देखते हैं बहुत श्रील एक्सचेंजेस होते हैं दो मतों के बीच में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक साइड जो थी हमारा दिमाग में होता था यही वाली करेक्ट साइड है, अब दूसरी साइड उठ के आगे आ गई है और दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। अब हमें ये देखना है इसके अंदर हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या सही है, नॉट बिकॉज ऑफ वेदर इट इज दी belief of that ideology or this ideology. That's what I wanted to say. धन्यवाद राजेश। आपने एक एडिटर इन चीफ को सुना तो दूसरा इसका जवाब भी दूसरा एडिटर इन चीफ दे तो अच्छा रहेगा। मीडिया करे क्या? अभी ये हमने समझ तो बहुत सारा लिया, राइट। हम अब हमारे हाथ में क्या है, करना क्या है? See, I think we generally forget that journalism is also treated as a public service, right? No other business. While we try to make our ship run, for which you need money, this is the only business that is actually seen as public service, and that is why we have a whole lot of rights given to us. Like no other business, no other profession has the right to question anybody and everybody. You can question the government, you can question the police, you can question businesses, you can question anybody and everybody. That is given to us only because in the Constitution itself, though there is nothing called, there is no act for press freedom, it is derived from the Constitution that everybody has the freedom to express their views, and journalists, the media organizations represent a public faith, a public service, right? So that is why we are given all the privileges, advantages of questioning everybody. That is where Hemant ji just said, which is very correct, that vibhajan ho gaya hai society mein. So how do we deal with this vibhajan? The problem is that earlier that vibhajan would be within that organization. You would have somebody saying that
Falana is right and somebody else saying that Falana is right. So you would have clash of opinions within that organization. So there is, the organization is not divided. What has happened now is that because one media house takes one extreme position without giving any play to the other opinion, another media organization then stands up to give you the opposite opinion. So this Vibhajan has now become between media houses, which I think is the biggest issue right now. इसको आप एक लाइन में कह सकते हैं, ये एक अहम बात कही। इसको आप एक लाइन में कह सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रवाद की सरिता बह रही है, अगर आप उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। दूसरी तरफ अंतहीन चरित्र हनन का स्विमिंग पूल है, जिसमें आप छपाक नहीं करेंगे तो गोदी हो जाएंगे। इस पर हेमंत हम राय लेते हैं अनिल वानवारी की। अनिल वानवारी तो मीडिया के सारे पक्षों को देखते हैं। अनिल वानवारी जी, आप उनके संपादकीय पक्ष को भी देखते हैं, उनके आप व्यापारी पक्ष को भी देखते हैं। तो ये जो अब आप जो अभी कहा राव ने कि मीडिया हाउसेज में ही आपस में लड़ाई हो गई है, युद्ध शुरू हो गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसका मीडिया पर असर क्या होगा आगे चलकर, हमको कैसे प्रभावित करेगा ये? कि मुझे थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अब जाइए, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन जब हुआ, हमने किसको टू वेरीफाई एंड टू कंफर्म दैट इंदिरा गांधी वाज डेड, मैंने बीबीसी को ट्यून किया। जब राहुल गांधी का भी हुआ था, राजीव गांधी का हुआ था असैसिनेशन, तब हमने ट्यून किया था बीबीसी में, क्योंकि हमें जो भी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के जो थे, कभी उन्होंने हमें सच्चाई कभी नहीं बताई थी, तभी भी क्रेडिबिलिटी का डाउट था तभी। और फिर आए आपके द वर्ल्ड दिस वीक ऑन दूरदर्शन, उस समय पे हमें दुनिया में जो हो रहा था हमें पता चला। We got exposed to everything. Today we have a problem of plenty in media. There are too many news channels. In most of the countries, news channels are pay TV channels. You pay to watch it. So there is no dependency on sources, on who we report on for money. अभी आजकल क्या हो गया है कि ये व्यापार हो गया है, और अगर हम किसके खिलाफ कुछ कहते हैं तो आपको सुनाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं सुनाई दे रहा है? बिल्कुल, आप बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। तो व्यापार हो गया। अगर हम किसके ऊपर रिपोर्ट करते, अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ रिपोर्ट करते, तो हमारे विज्ञापन जो हमें देते वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन मनी टू जर्नलिस्ट सैलरीज हैव गॉन स्काई रॉकेटेड। वो लोग बहुत एक मीडिया हाउस से दूसरे मीडिया हाउस में जाते हैं, और उसके कारण कॉस्ट हैव गॉन अप फॉर एवरीवन। तो हमें इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, एक बात है। और आप जो बोल रहे थे कि क्या होगा फ्यूचर में, मीडिया हाउस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो तो हमेशा हुआ करता था। आप जाइए, जब बोफोर्स का रिपोर्टिंग हो रहा था उस समय पे इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ा ज्यादा आगे लिया, फिर उसके बारे में फिर रिलायंस का गुरुमूर्ति ने बहुत एक्सपोज किया था उस समय पे। एक मीडिया हाउस तब जो दूसरा मीडिया हाउस कह रहा था उसको कवर अप कर रहा था, दोनों साइड से पीआर की मशीन भी चल रही थी। तो ये हमेशा चलते जा रहा है, कोई कुछ नया नहीं, सिर्फ अभी एम्पलीफाई हो गया क्योंकि बहुत मीडिया आउटलेट्स है। इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना, एंड my thing is that probably there has to be some sort of sanity coming into the entire business. Dependency on advertising makes it very what happens is we try to sensationalize, we try to get eyeballs, we try to get ensure that we go out of the limits whenever we have to. So if news television goes pay, there'll be a lot more sanity coming into the business. As far as the print media goes, print media आजकल कौन देखता है? आजकल एक इन्फ्लुएंसर है, आप देखिए जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर ट्विटर पे, उसको कोई जरूरत है नहीं मीडिया की, क्योंकि he reaches out to 43 million people, 50 million people. जैसे आप देखेंगे उनको मीडिया की जरूरत नहीं है, वो जो कहते हैं उनके फैन और फॉलोअर्स सब स्वॉलो कर लेते हैं और सब बोलते हैं कि वो गॉस्पेल ट्रूथ है। तो मीडिया इज एट अ स्ट्रेंज जंक्चर where we have to ensure that the problems of plenty do not affect it. प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। धन्यवाद अनिल, आपने बहुत अहम सारी बातें उठाई हैं। मैं एक बार जल्दी से आपके पास बनाना चाहता हूँ। शुरू में बात आ गई फिर कि उस पर विज्ञापन पर हमारी निर्भरता जब तक कम नहीं होगी तब तक ये सफाई नहीं हो पाएगी। कैसे होगा ये? देखिए, दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू मी, I think advertising driven news media in itself is an oxymoron. As I always say, that will I be going after the wrongdoing of a corporate house if he is patronizing me as an advertiser? So according to me, finally it has to be subscription driven
altogether. We can discuss at length on that later. But I just want to take this opportunity to take what B.V. Rao had just said, that we have the power to ask the question. Yeah. And then I think one of the speakers said that without verifying, we dish out news with the pressure from the digital media. Now, we try to do, we have certain norms. We say these are zero tolerance areas. Yeah. You can't do this. We pull them up. But I would like to request if Prasoon or Kumar Viswas, either one of you or both of you could respond to that. That let's keep aside the role of media and the authority that you have got of asking questions. With authority comes great responsibility. With power comes great responsibility. We understand that. But in general in the society, you get away saying wrong things, you get away lying. It happens in all aspects of the society. What do you do that? As I always believe that there are only two things will deter us from doing wrong things, which is either bhai or bhakti. Bhakti is missing all over. But where is the bhai? How do you get away claiming wrong things as a politician? How do you get away giving wrong news as a journalist? Within the organization, we have checks and measures. But is there a legal system? Don't you think that we should have a legal framework to hold somebody accountable for something which he says, whether media or politician, in public domain, if that's not correct? कुमार विश्वास जवाब दे रहे हैं? जी कुमार। बहुत मैं राहुल जी इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो ये कि जितने लोगों को मैंने सुना है वे सब संचार माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ हर तरह से, आपके माध्यमों से भी, और अपने खेत में बैठा हुआ हूँ तो वातानुकूलित में भी नहीं हूँ, खुली हवा में हूँ, आकाश के नीचे हूँ, अपनी कुटीर में हैं आप। मैं आपसे कह दूँ, जितने भी लोग आप आपके भी कुटीर में हूँ, जितने भी लोग आप बोल रहे हैं, आप जो भाषा बोल रहे हैं, जो तथ्य रख रहे हैं, अंदर तो आप भी जानते हैं कि हो क्या रहा है। अंदर तो आपको सबको पता है कि एडिटर के पास फ़ोन किसका आता है, सत्ता किसकी होती है तो किसको आता है। अंदर तो आपको भी सब पता है कि कौन से उद्योगपति हैं जिनके सहारे मीडिया को मैनेज कराया जाता है। हमारे यहाँ कवि सम्मेलनों में जो जुमले चलते हैं, जो चुटकुले चलते हैं, जिनकी बहुत निंदा भी होती है और जिन्हें मैं खुद भी बहुत गर्हित मानता हूँ, उसमें एक चुटकुला ये भी चलता है कि नोएडा में एक नए पत्रकार लड़के का जब शादी का रिश्ता तय हो रहा था तो लड़की वालों ने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो लड़के के पिताजी ने कहा जी लड़का पत्रकार है। तो लड़की की माँ ने पूछा कौन सी पार्टी का? कौन सी? जब पत्रकार पार्टियों के हो जाएं, जब उनके ट्विटर हैंडल पर हम पहचान लें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब पैनल बिठाया जाता है, एक पार्टी प्रवक्ता, एक पार्टी जिस विचार से आई है उस विचार का प्रवक्ता, एक पार्टी जिस धर्म का काम कर रही है उस धर्म का प्रवक्ता, उसके बाद विपक्ष का एक आदमी, और वो भी बेचारा अगर कोई ढंग की बात बोल दे तो एंकर बीच में कूद जाता है और बताता है पार्टी प्रवक्ता को फला वाला तर्क आप भूल गए थे, ये वाला दे दीजिए आप, और बाद में कंधे पे आंख मार के कहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं न्यूज रूम में 5 साल कुश्ती मैंने भी खेली है। मैं आज हेमंत जी के कहने पे वर्षों बाद किसी पैनल में बैठा हूं, अन्यथा पैनल डिस्कशंस नहीं करता क्योंकि वहां संवाद की गंभीरता नहीं होती। आज हो रही है कि बड़े गंभीर लोग बैठे हैं। आपसे हाथ जोड़कर फिर कह रहा हूं, दर्शक का नुकसान नहीं होगा। जिस खेत में पैदा होना बंद हो जाता है वहां के पशु नहीं मरते, वहां के लोग नहीं मरते, वो दूसरी जगह पैदा करना शुरू कर देते हैं, खेत जोत लेते हैं। खेत जुत गया, सोशल मीडिया का खेत आ गया, वो खेत भी अगर चरस बुआ हो जाएगा तो नया खेत आ जाएगा, कोई और चीज आ जाएगी। आप लोगों पर संकट है भाई साहब, आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता बार बार नीचे आ रही है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जो बात कही लीगल फ्रेमवर्क, सर लीगल फ्रेमवर्क से कुछ नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी पहले आयाराम गयाराम की सरकारें बनती थी, रात रात में लोग दल बदल करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को लोक निंदा और लोक की स्मृति में उत्तरजीविता का प्रश्न उनके दिमाग में सुबह दोपहर शाम घूमता था। इसलिए उन्होंने कह दिया कि एक वोट खरीदने से अगर सरकार बचती हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से अस्वीकार करता हूं। कहां चले गए वो लोग? और मैं फिर कह रहा हूं, मैं भक्तों से भी कहता हूं, चमचों से भी कहता हूं, चिंटुओं से भी कहता हूं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और अब मीडिया के मित्रों से भी कह रहा हूं, इन सब कारणों के, अपनी निजता के कारणों के कारण अपने आप को खेमे में मत बांधिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, राजस्थान में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है। समर्थक पत्रकारों से भी कहना है, आप जिनको गरियाते हैं 25 साल, छोटे से सरकार बनाने के लोभ में उन्हीं को अपनी गोदी में लेकर बैठ लिया रहता है, तो फिर उनको चाचा जी बोलना पड़ता है। हम एक बार एक बहस में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है राजस्थान की, उनके बेटे पर कोई आरोप था कंपनियों का,
तो बोले किसको बिठाएं, कांग्रेस की ओर से कौन आएगा, भाजपा की ओर से कौन आएगा। तो मैंने कहा कि फलां जी को बुला लीजिए, क्योंकि वो पिछले चुनाव में कांग्रेस में थे और ऐसे ही एक पक्ष को उन्होंने वहां के दामाद जी के लिए सॉल्व किया था, तो यहां के बेटे जी के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। बताइए, तो आप भाई साहब कमेंटेटर हैं, आप नारद हैं, आप लक्ष्मी के पीछे मत पड़िए, अन्यथा आप मोहिनी के पीछे पड़ेंगे तो आप लोकापवाद के, लोक उपहास के पात्र बनेंगे। आप संजय हैं, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि तुम भीम को समझाते क्यों नहीं हो, भीम ऐसे, उसने कहा साहब मैं समझाई, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, जो आपने भगा दिए। कभी मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, मैं जल्दी कर रहा हूं, सूरज डूब रहा है। अभी के प्रति अगर हम थोड़ा सा भी उपेक्षा का भाव रखेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? आप ये जानते हैं। बिल्कुल चलेगी साहब, जिस जनता के प्रति उत्तरदायी है। भाई मैं आप एक मिनट, हेमंत और मैं वरुण, आप दोनों से कहूंगा, कुमार विश्वास जी, आप उत्तरदायी हैं, आप उत्तरदायी हैं सब्सक्रिप्शन के जी। आप सही रास्ते पर आए हैं। अभी जो टेलीविजन का रेवेन्यू है उसमें 95% विज्ञापन से आता है और 5% सब्सक्रिप्शन से आता है। जब तक ये मामला नहीं बदलेगा, जब तक ये मामला, मेरी बात सुन लीजिए, जब तक ये मामला नहीं चलाई, हमने आंदोलन चलाया। अरे भाई, तो आपने जो आंदोलन चलाया उसका क्या हुआ? उसी पार्टी में नहीं, एक मिनट, आप दोनों बंधुओं से अनुरोध है, अभी कृपया, अभी हमें बहुत सारे हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं जिनसे हम बात भी नहीं कर पाए हैं, तो ये जो बहुत लंबी एक प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा शास्त्रीय संवाद है, लेकिन इसको भी थोड़ा विलंबित रखेंगे, अभी थोड़ा रुकिए। कुमार, आई विल ट्राई टू सेकंड गेस whose mind you have read and I will try to convey the message to them, but I can tell you that you haven't read my mind at least. और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश, और वो आप जानते हैं, उनको भी देखते रहते हैं। ये सब बहुत बड़े लोग हैं, बड़े अच्छे चिंतक हैं और सबके पास अपनी बहुत ठोस बातें कहने के लिए। लेकिन सबसे पहले चूंकि अब राजनीति की काफ़ी बात हो रही है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। तो चाहूँगा कि गौरव, आप राजनीतिक पूरे प्रतिष्ठान की ओर से इस बात का जवाब दें जो कहा गया है, जो बातें कही गई। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले तो जो भी सम्मानित गेस्ट हैं और टीवी 9 के भारतवर्ष के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, मैं एक तथ्य से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि आज़ादी के जो आंदोलन जब चल रहा था देश में, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें से 75% फ्रीडम फाइटर्स पत्रकार थे और उनके अखबार थे, उनकी संस्थाएं थी। आज मुझे नहीं लगता, मेरा ज्ञान अगर कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से चालू किया गया एक भी बड़ा प्रतिष्ठान आज एग्जिस्टेंस में है। आज प्रतिष्ठान कौन चला रहे हैं? आज प्रतिष्ठान जो समाचार पत्रों के और टीवी चैनल्स के मालिक या तो व्यापारिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं या दूसरे काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिसको मैं एजेंसी प्रॉब्लम कहता हूँ। एक तरफ मीडिया है, एक तरफ मीडिया का दायित्व है जो पैसा लगा रहा उसके अंदर उसके प्रति, एक तरफ मीडिया का दायित्व है सरकार के प्रति कि वो सरकार की पॉलिसीज का को अपने चैनल्स पे और अपने पत्रों में दिखाए। एक तरफ मीडिया का दायित्व है पब्लिक एट लार्ज पर कि वो राष्ट्र निर्माण का सहयोगी बने, और एक तरफ मीडिया का दायित्व है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे डाइवर्स ओपिनियंस को आप जगह दे सको। अब यह हो क्या रहा है कि मीडिया अपना दायित्व या तो एक या दो के प्रति पूर्ण कर रहा है, या तो सरकार के प्रति या जो उसमें निवेश कर रहा है। और मैं यहाँ पे सारे मीडिया की नहीं बात कर रहा, अधिकांश मीडिया दो लोगों के प्रति, दो नियोक्ताओं के प्रति अपना दायित्व को पूरा कर रहा है। बढ़िया गौरव जी, आपने एक ठोस बात कही है और इसके लिए मैं चलता चाहता हूँ कि स्मिता प्रकाश अब आए। और स्मिता, आपने बहुत स्पष्ट दो आरोप या दो खेमों की बात कर ली, सुनी है जो गौरव कह रहे हैं। आपको इस पे क्या लगता है कि क्या मीडिया सचमुच केवल इन दो लोगों की बात कर रहा है, उनके लिए जवाबदेह बन रहा है? स्मिता प्रकाश ANI की संपादक हैं और ANI हम जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी टीवी न्यूज एजेंसी है। स्मिता प्रकाश मल्टीमीडिया है, टीवी भी, प्रिंट भी, सोशल मीडिया भी, सब कुछ। देखिए, मीडिया में क्या है कि जो
there is a crisis. I think everybody is admitting that the model is in crisis. जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा, अभी डिटेल में कहा कि जब तक वो मॉडल नहीं बदलेगा टीवी न्यूज का या प्रिंट न्यूज का, तब तक ये क्राइसिस रहेगा. कुछ लोगों ने कहा, माना कि क्लीन अप इज इन द वे. नहीं, I don't believe that there is any cleanup in the way. This crisis is going to play itself out, और अभी I think it is going to become worse because जो हमने 1-2 महीने में देखा है, ये जो लीगल एस्पेक्ट आ गया है. अब हम सभी न्यूज चैनल्स, news agencies, newspapers, we now have to take out a large budget to pay for the legal fees. Because after what you have seen, what happened with all the journalists who are going Supreme Court तक चले गए हैं. Now we have to take out a huge chunk of money to pay for legal fees of everything, क्योंकि सब legal चले गए हैं. आप कुछ भी आप कीजिए, there is a court case upon you. चाहे आप corporate की रिपोर्टिंग देख लीजिए, political रिपोर्टिंग देखिए, personality रिपोर्टिंग देख लीजिए, बॉलीवुड का देख लीजिए, किसी की भी रिपोर्टिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, आप कुछ भी कर लीजिए, there is a legal aspect to it. Immediately there is a case slapped upon you. So this model is going to get hit all the more. Now the crisis also happens, as Kumar Vishwas says, that reporting, opinionating, entertainment, ये barriers जो थे पहले, ये merge हो गए हैं. So you know, there was a time when many of us got into journalism कि हम लोग editorialize नहीं करते थे, हम लोग straight reporting करते थे, who, what, when, where, why. ये आपकी रिपोर्ट थी. जो एडिटोरियल्स थे वो सीनियर रिपोर्टर्स, सीनियर्स लिखते थे, जिनके 25-30 साल का जिनका एक्सपीरियंस था. आज वैसा नहीं है. दूसरा, फैक्ट चेकिंग के लिए कोई फिल्टर्स नहीं रहा. अभी जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा है, आप देख लीजिए, रिपोर्टर्स जो वहां गए हैं वो आंखों देखा हाल बताते हैं. Many of the reporters who have gone on the scene, उन्होंने कोई रिसर्च भी नहीं की होगी, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की होगी. गूगल सर्च कर लिया, गाड़ी में बैठे बैठे बॉर्डर तक जा रहे हैं, उनके पास आधा घंटा है, उबर में बैठ के जा रहे हैं कवरेज के लिए, और वो फर्स्ट 3 गूगल सर्चेस में जो इंफॉर्मेशन मिल गई वो बोल देते हैं टेलीविजन पर, या वो अपने डिस्पैचेस में फाइल कर देते, क्योंकि अब वो बात नहीं रही कि 11 बजे रिपोर्ट फाइल करेंगे प्रिंट के लिए, वो वेबसाइट में फाइल होता है. तो वेबसाइट के लिए कंटिन्यूअस अपडेट्स चाहिए होते हैं. तो वो 5-6 गूगल सर्चेस मार लिया. कोई भी कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से बात नहीं की, कोई ब्यूरोक्रेट से बात नहीं की जिसने एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो हैंडल किया हुआ है. तो आई एम सॉरी टू से दैट ये पहले भी होता था, आज भी होता है. ये मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि आज होता नहीं है. सिर्फ मीडिया नए आ गए हैं और ज्यादा फैल गया है. आपने कई अंदर की बातें बता दी स्मिता, मुझे डर लग रहा है कि लोगों को बहुत मसाला मिल जाएगा हमारी और आलोचना करने के लिए, लेकिन ये बात सच है. ये इतिहास हमें स्वीकार करना पड़ेगा. हमारे साथ, मैं इससे पहले कि अमीश त्रिपाठी जी के पास चलूं, अमीश एक बिल्कुल अलग दृष्टि हमें देंगे, मैं चाहूँगा कि रामकृपाल जी जल्दी से अपनी टिप्पणी इस बात पर दें, जो एक बड़ी पीछे की बात, और कि यह हमेशा होता रहा है किसी न किसी रूप में, जो स्मिता ने कहा. राहुल जी, बड़ी मुश्किल से समय मिला है, तो मैं चाहता हूँ, मैं जब पत्रकारिता में आया 1977 एक तरह से, तब से मैं लेकर के और आज 2020 तक, चाहे वो प्रिंट हो चाहे जहाँ हो, मैं एक चीज़ सुनता रहा कि लोकतंत्र की हत्या. मैंने बड़ी बड़ी हेडिंगें भी देखी, और इतने सालों में आज भी लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा है. मुझे बहुत सारे लोगों की बातों से ये लगा कि अतीत का दुखड़ा और वर्तमान का दुखड़ा. मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ. 1980 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में था, नवभारत टाइम्स में. याद होगा आपको राहुल जी, उस समय बसंत साठे, यानी जनता पार्टी की सरकार गई थी, इंदिरा गांधी जी फिर से हो गई थी, बसंत साठे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुए थे. उन्होंने एक घोषणा की कि हम हिंदुस्तान में कलर टेलीविजन लाने जा रहे हैं एशियाड के मौके पर. आपको पता है, निखिल चक्रवर्ती से KR मलकानी, मदरलैंड से लेकर के मेन स्ट्रीम दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल खड़े हो गए और उन्होंने कहा, खबरदार. आपको बता दूं, रघुवीर सहाय जो दिनमान के संपादक थे, उन्होंने संपादकीय लिखा कि अब खून का भी रंग दिखेगा. इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से बदलेगी, उस समय का इंटेलिजेंसिया नहीं समझ रहा था. मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने समस्याएं बताई हैं, बात सही है, और ये समस्या पहली बार नहीं रही है, पहले भी रही है. देखिए, इस देश में अच्छाई ज़्यादा है. मुझे जनता और ये जो यूथ है उस पर भरोसा है, वो किसी भी गलत चीज़ को बहुत दिन तक टॉलरेट नहीं करेगा. हिंदुस्तान एक ट्रांजिशन फेज में है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ बहुत देर में आया है. अभी हमारे देश में ऐसी जगह हैं
जहां अखबार प्रिंट मीडिया भी नहीं पहुंचा है और प्रिंट मीडिया के अवसान के दिन आ चुके हैं। तो ये समझ लीजिए कि बड़ा हमारी सोसाइटी में ऐसा है, जो इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं। कुछ दिन पहले आप देखिए फिल्मों में भी था, एक एंग्री यंग मैन आया था, उसके पहले लवर बॉय राजेश खन्ना थे। दौर चलता है। आज की तारीख में देखिए, जो समाज हित से दूर होगा, जो मानुष नहीं अमानुष को मानेगा, जिनका ये रहेगा कि किसी भी कीमत पर, एक मैंने चैनल का देखा था स्लोगन, खबर हर कीमत पर। अरे भाई, क्या हर कीमत पर? क्या मतलब आपका कहना है? कोई भी चीज़ हर किसी भी कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती। मानव अमानव होकर के कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकता। तो मेरा ये कहना है कि एक समाज का एक ढांचा है जो चीज़ों को पहले परखता है। अब आप इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो रिजेक्ट करेगा आपको। जो चीज़ें हैं आप तय जान लीजिए। और ये कहना कि टीआरपी और फलाना मालिक पूंजीपति, देखिए 22 रुपए का अखबार 2 रुपए में मिलता है, ऊपर से 30% कमीशन। दुनिया में कोई चीज़ आलपिन से लेके एरोप्लेन तक अपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से 6% और 7% की कीमत पर नहीं बिकती। कहाँ से तनख्वाह देंगे दूसरों को? तो ये कहना कि माल तुम्हारा मर्जी मेरी, मैं समझता हूं कि ये नहीं होता है। जी जी जी। अब ये बुनियादी रामकुमार जी, एक मिनट, मैं रामकुमार जी को पहले धन्यवाद दे दूं, क्योंकि अभी इतने हमारे लोगों के पास चलना है। और अमिश त्रिपाठी आपके मित्र भी साथ आए हुए हैं, तो जरा what I was in the context of what Ram Kripal ji said, बहुत जरूरी था। I think it is very relevant. We'll come to that. With your permission, Rahul ji, I just want to go to Amish. Amish, you're sitting in London, and you have the perspective, you have possibly a first-hand global perspective which you are experiencing. There, BBC is forced into every household of in UK. How do you see it from outside in? Do you think it's all very absolutely at the shambles, as Ram Kripal ji said, that we've traversed to absolute destruction at this point in time? Or do you see things are grossly different in the global arena? Amish. Honestly, I'm not a journalist, but I can see that there's a problem, and I hope journalists work on how to solve this. I see 3 key issues. For example, in the UK, BBC does not have to depend on advertising to pay its bills. There's a compulsory license fee that is levied on every single British household, right? But despite that, just like in India, even in the West, the media has lost credibility. Firstly, the media is almost always considered to be a part of the elite group, right? Which works towards the common people, which is a very different impression from what impression journalists and media had 30 years ago. That journalists and media were the voice of the people against the elite. Today, it's not just in India, even in the West, the impression is that journalists and media are the voice of the elite against the people. This is a very worrying trend. The second thing that you see, even media houses which do not depend on advertising income are using increasingly sensationalist headlines. And the headline is very sensational. When you read the story, you realize, अरे इतना बुरा तो नहीं है जितना headline बता रहे हैं. And so, what is called clickbait journalism. And again, you assume that this is there only in India. No, in fact, it is there in the West as well. And I'm talking about mainstream media houses. And because of that, again, they start losing credibility. And the third thing which worries me as a Democrat and a liberal, I am very worried that the model that is being propagated around the world of an authoritarian communist government being efficient is very worrying. I would like democracies to get our act together so that we can become efficient. And there's a third thing where I fear, not just in India, even in the West, where media is causing problems, it is increasing divisions between societies. Just one last thing. I wish to come to Mr. Santosh Desai, because this is a very fundamental question, fundamental issue related to consumers. As Amish says that it's all over the world, media is losing credibility. Now we are also in a free market. People exercise their choice what they want to consume. So shouldn't there be an autocorrect in a free market, Santosh? If the consumers are allowed to choose what they want,
why would they choose something which is substandard and not, why would not they eliminate something which is not up to the mark, up to that standard? Why this autocorrect thing is not in play here as far as media is concerned, and the same thing is happening across the world also? Santosh, please. Yes. I heard that. So I do think that's true. I mean, certainly, I mean, there is a free market at work here. To me, the question that a lot of people have posed and a lot of the suggestions that have been forthcoming have been about the idea of, advertising-driven journalism and the kind of consequences of being overly dependent on advertising as against a subscription model. And I suspect that this is an analysis that I think 5 years ago would have been, I think, a fairly valid analysis. But I think today, I think it's comforting to think that the problem lies outside in a business model. But I suspect that is not the whole story. I mean, for instance, you look at social media, and it is not an advertising-driven model. And yet, if you were to look at the kind of people who attract followers and the kind of news that gets currency, it's a far cry from what you would want journalism to be. And I suspect that, therefore, if you were to, in fact, even adopt a subscription model, I think people now have got a taste of the kind of news that they want to follow. And so once you become market-led and you go by not news that is important, that people need to know, but what people want to know, once you cross that line, I think to dial it back becomes extremely difficult. We very clearly said that this is a soul searching, which is an introspection. We are not shirking our responsibilities. We believe that the correction should emanate from within ourselves. So we just want to assure you as a network that we initiated this process today to do that introspection, and we understand that we are not driven always by external force. But my question to you was that, which we come back later, that why isn't there an autocorrect in play in a free market? Which is a more fundamental fundamental question which we would like to explore. राहुल जी. हाँ, अभी संतोष एक मिनट आप रुकिएगा, ये एक अहम सवाल है, इस पर हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि इसका जवाब ज़रूरी होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति CB पांडे जी हैं, जो बहुत देर से पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आज समय यह हो गया है कि मीडिया हाउसेस और पत्रकार स्वयं खबर बन गए हैं और वो अब अदालतों में पहुंच गए हैं, और वो अब देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कल इसी मामले में ऐसे उसको फैसला दिया है। तो क्या, और कई बार अब अदालतें सीधे दखल देने लगी हैं, अदालतों को, हाई कोर्ट्स के साथ अदालतों को भी और मीडिया को भी नसीहत देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। आप कैसे देख रहे हैं एक न्यायमूर्ति के नाते इसको? राहुल जी, ये जो अभी मैंने तमाम बहुत वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को सुना, तो सभी ने कहा कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत गिर रही है, और इसको माना तो ये तो अच्छी बात है और बड़े साहस की बात है कि सब लोग अपनी आत्मविश्लेषण कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारे में कमियां हैं और हमारी क्रेडिबिलिटी भी घट रही है। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि क्रेडिबिलिटी जितनी इम्पॉर्टेंट है कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, देखिए, आप पॉलिटिकल मैटर में आप रिपोर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं है, लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल मैटर में जो रिपोर्टिंग होती है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। आप धार्मिक मामलों में और सोशल मामले में जब रिपोर्टिंग करते हैं तब भी नुकसान जरूर होता है, लेकिन वो भी बहुत गंभीर नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे लीगल मैटर में आप रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ बहुत गंभीरता से रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, वहाँ किसी मुकदमे में जब आप मीडिया ट्रायल का नाम बार बार आता ही है, तो जब उसकी रिपोर्टिंग, जब मीडिया के किसी केस के बारे में और जो खास करके क्रिमिनल मैटर में जब रिपोर्टिंग होती है, तो ये बात को नज़रअंदाज किया जाता है कि एक फेयर ट्रायल जो है, जो अपराधी है, जो एक्यूज है, जो सो कॉल्ड एक्यूज है, उसका जो फेयर ट्रायल करने का राइट है। दूसरी तरह से बहुत सारे लोग हैं, उससे जो विटनेसेज हैं या बहुत सारे और लोग जो उसके को एक्यूज है, उनके बहुत प्राइवेसी की अपनी राइट है। तो ये बातों को बिना समझे बुझे जब रिपोर्टिंग होती है तो लगता है कि मीडिया बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हो गया है, और उसमें कोर्ट को ये लगता है कि ये बार बार कोर्ट के सामने बात आता है कि क्यों नहीं मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना चाहिए। और उसमें कोई मैं बहुत सारे मामले में देखा हूँ कि हेमंत जी बहुत सारे लीगल मैटर को जानते हैं और वो जब बात कोई कहते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट जब बात वो कहते हैं तो वो, मैं एज ए लीगल पर्सन मैं समझता हूँ कि बड़ी इररिस्पॉन्सिबल ढंग से अपनी बात कहते हैं, बात कही है, समझ कुछ रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मैटर कोर्ट को भी अनाव करते हैं
और साथ साथ जो एक्यूज है या जो भी पार्टी है मुकदमे के, वो उनका इंटरेस्ट बहुत बैडली इफेक्ट होता है। अब देखिए बेल का जो मैटर है वो एक डिस्क्रिशनरी मैटर है। डिस्क्रिशनरी मैटर जज चाहे बेल दे या ना दे, लेकिन जैसे हम मीडिया ट्रायल करके उसको इतना बड़ा अपराधी साबित कर देते हैं तो उसका एक इफेक्ट होता है वो, और जज जो है वो डिस्क्रिशन देने में अपना डरने लगता है, भले उसका राइट हो लेकिन जज वो डरने लगता है। तो इस तरह बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम क्रिमिनल मैटर में अगर आप नहीं करेंगे, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा रहा कि हम मीडिया ट्रायल को ये इस मामले के मुकदमे को हम इसके रिपोर्टिंग को मना कर देंगे, और कई बार उन्होंने कहा भी मना किया, और ये भी उन्होंने कहा कि देश को कानून बनाइए। लेकिन एक बात मैं खत्म करूंगा कि अगर मान लीजिए जिस दिन कोर्ट ने कह दिया और गवर्नमेंट ने अगर मीडिया किसी भी मुकदमे को रिपोर्टिंग के लिए मना कर दिया, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा और लोगों का भी नुकसान होगा, और साथ साथ मीडिया के ऊपर बड़ा भारी एक स्पॉट हो जाएगा कि इनको मना कर दिया गया है ये लीगल मैटर के रिपोर्टिंग ना करें। तो इसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ महसूस करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीगल मैटर का रिपोर्ट करें। जी मैं इस मीडिया ट्रायल वाले मामले पर, चूंकि एक बहुत बड़ा मसला है ये, मैं स्मिता के पास एक बार फिर से लौटना चाहूँगा। मैं चाहूँगा उसके बाद बीवी राव भी इस पर टिप्पणी करें। स्मिता, ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, हम सब भी उसमें परेशानी महसूस करते हैं कि क्या हमें अधिकार है किसी पर फैसला देने का, उस पर ऐसे उसको किसी को राष्ट्रद्रोही या किसी को कुछ भी कह देने का, ये कितना सही है और इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है? I think I completely agree with the judge जब वो कह रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, दिस इज काइंड ऑफ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। पहले भी होता था, बहुत सारे ऐसे अभी तक हिस्टोरिकली इफ वी गो टू सी, चाहे इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस हो या फिर इवन द बिल्ला रंगा केस, ऐसे बड़े सारे क्रिमिनल ट्रायल्स थे जो विच वर इट केम टू मच इन द लाइट। 1984 राइट्स हो जाए, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, देयर आर मेनी केसेस इन विच द मीडिया ट्रायल बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, और आज भी आप देख रहे हैं। लेकिन द थिंग इज दैट व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ द जर्नलिस्ट हैव बिकम द न्यूज। जर्नलिस्ट के ऊपर जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो मीडिया ट्रायल्स जो हैं, दैट हैज बिकम न्यूज। अब ऑन दिस मैटर ऑल्सो मीडिया इन इंडिया इज सो डिवाइडेड कि अगर मैं आज आपको कहूं कि बाय एंड लार्ज मीडिया इन इंडिया इज अनफेटर्ड, हमारे ऊपर कोई बेड़िया नहीं है, तो आई विल बी लाफ्ड एट, आई विल बी स्निगर्ड। कुमार विश्वास को छोड़िए, मीडिया के लोग ही मुझ पर हंसेंगे कि क्या आप कह रहे हैं मीडिया फ्री है? बिल्कुल फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मीडिया जो है इट हैज डीजेनरेटेड इनटू अ लिंच मॉब, हम लोग बेकार के लोग हैं, हम लोग सब बिक चुके हैं, हम लोग सब गोदी मीडिया है, तो सब मेरे पे थपथपाई करेंगे कि क्या बढ़िया जर्नलिस्ट है स्मिता, देखो सब जानती है मीडिया के बारे में। लेकिन द पॉइंट इज दैट वी आर समवेयर इन बिटवीन, हम दोनों तरफ हम वी आर बीइंग पुल्ड एंड देयर इज नो शीन लेफ्ट इन द प्रोफेशन। कोई मतलब वी आर लेस लाइक्ड प्रोबेबली और अ लिटिल बेटर ऑफ देन पॉलिटिशियंस। मतलब जितना अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाए या किसी के ड्राइंग रूम में जाए तो हमारे ऊपर लोग हंसते हैं। अब जो पहले होता था दैट वी कमांडेड अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ पत्रकार आए हैं, जरा उनसे जानकारी ले ले, उनसे पूछ ले, वो जमाना गया। अब नाउ दे आर लाफिंग एट अस, व्हाई? वी आर टू ब्लेम टू, we as a lot, we are to blame. I agree कि ये कहना गलत है कि सिर्फ हम ही खराब है, but somewhere we have to correct ourselves. And the point is that the media companies जो हैं, to stay afloat, they have had to bend many rules, many regulations, many checks. हमारे जो फिल्टर्स थे, जो पहले जो फिल्टर्स थे, वो अब फिल्टर्स गायब हो गए हैं। और अब जो है the point is that जब वो फिल्टर्स गायब हो जाते हैं तो वी डोंट कमांड दैट रिस्पेक्ट जो हमें होना चाहिए था। तो क्रेडिबिलिटी इज अंडर क्राइसिस। बिल्कुल करेक्शंस इफ दे आर, धन्यवाद कि हम खुद ही अपने आप को करेक्ट करें तो ये बेहतर होगा। प्रेस काउंसिल अगर हमें बताए तो ठीक है, लेकिन जब सरकार आएगी और जब डंडे मार के हमें सही रास्ते दिखाएगी, दैट इज द वेरी स्कैरी प्रोपोजिशन दैट वी आर इनटू। हम नहीं चाहते कि वो भविष्य आए, वो खतरा हमें उठाना पड़े। हमारे के लिए हम भी सहमत नहीं हैं, लेकिन जब जुडिशियरी अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगी तो क्या होगा? हमने देखा है कि अगर बार तो जुडिशरी तक जाने से पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मैं उससे असहमत हूं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर मीडिया ट्रायल न होता तो जेसिका लाल को न्याय न मिलता, अगर मीडिया ट्रायल न होता तो नीलम कटारा को न्याय न मिलता, डीपी यादव जेल में न होता। तो मैं ये समझता हूं कि जब जुडिशरी अपना काम करना कम करेगी
तो मीडिया ट्रायल होगा। और ठीक बात है, लेकिन हमें परिभाषित करना पड़ेगा कि मीडिया ट्रायल क्या है। मीडिया में किसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाना वो मीडिया ट्रायल नहीं है। मीडिया ट्रायल तब होता है जब हम ही वकील हैं, हम ही जांच करने वाले हैं, हम ही न्यायाधीश हैं। इसलिए मीडिया ट्रायल का मतलब वो है। मीडिया में उठाना एक अलग चीज़ है, मीडिया ट्रायल करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है।